Now today going to discuss about the soil loss estimation. And in your syllabus, there is also mentioned the soil loss equation. Okay, how many you know about the what is the soil loss? Do you know about the soil loss? हेलो, आप लोगों को सॉइल लॉस के बारे में पता है? The transportation of soil from beyond its boundary soil loss for that particular geographical area. Yes. Okay, right. This is the soil loss. So there are different models. There are different models exist for the estimation and how much the soil is lost. So there is some equations, mathematical models based on some practical observations, so that physical conditions, by putting all the parameters that come into the form of the mathematical models. So now today going to discuss about the different models. Basically two models, that is the universal soil loss equation models, and I'm going to discuss today in this how the soil loss can be estimated. Okay. आप लोग को दिख रहा है soil loss estimation? ये दिख रहा है आप लोग को? सर आपकी हेलो, स्क्रीन दिख रही है? नो सर, नो। दिख रहा है? यस सर, हाँ, ये soil loss estimation है ना. Today going to discuss about the soil loss equations, है ना, estimation, है ना, how the soil loss can take place, है ना. As earlier to define, the soil loss is the removal of the soil particles and from one land and deposit into the other land. Means other land, if you see the other land means cross the boundary, and cross the boundary. So this is the soil loss. If you cross the boundary, that is the soil loss. Okay. Same definition will be the same as the soil erosion, but only the crossing the boundary. That is only the difference. If you cross the boundary, then it becomes soil loss. If within the boundary, then it is a soil erosion. Okay, so there is some soil loss effect, and you must be know about it. The soil loss can take place. Then what happens? Then soil characteristics can be deteriorated, with a long time. Then soil characteristics can be deteriorated, and the soil also became the undulating, top fertile soil can decline, so these are the many problem comes when the soil loss take place, soil loss take place. So now before going to study about the soil loss, what are the factors, what are the factors to affect the soil loss? So you must be know about the what is the factor for the soil erosion. Soil erosion का factor पता है आप लोगों को?
What are the factors that affect the soil erosion? Climate, soil, vegetation, हाँ, rainfall. okay. These all are the factors come into the soil loss. है ना? What are the factors responsible for the soil erosion? These all are the factors are also responsible for the soil loss. Okay, soil. हाँ बोलो. Someone wants to join. Okay. And the what are the factors responsible for the soil erosion? It is also responsible for the soil loss. And if the intensity will be more, and if the intensity will be more, then it becomes the soil loss. Factor will be the same. The intensity will be more, so that it cross the boundary. And it's cross the boundary. So the soil and the climate-based factor are dominating the yielding of the soil losses. Soil loss. It's also depend upon the different type of the soil and also the climatic factors. In climatic factors, which is the more dominant climatic factor means if the rain particles will be more intense rainfall, longer duration rainfall. These all are the factor are the responsible for the greater yielding of the soil losses. There are two terms. One term is the soil erodibility and soil erodibility. Erodibility. There are two terms. आपको समझिए कि soil है, ये soil होता है factors का दिया. Mainly the factors are which are the factors responsible for the soil erosion. आप बोल सकते हो कौन सा फैक्टर है जो सोइल को इंक्रीज करता है उसमें से अगर हम दो बात करेंगे और ठीक है ना सवाल इरोजिबिलिटी एंड इरोजिबिलिटी है ना इरोजिबिलिटी को आपको समझना है इरोजिबिलिटी है ना इरोजन होने की कैपेसिटी है ना इरोजिबिलिटी इरोजिबिलिटी एंड इरोजिबिलिटी ये दो टर्म है आपको टर्म को अच्छे से समझना है ठीक है ना टर्म को अच्छी तरह से समझना है द टर्म इरोजिबिलिटी है ना इरोजिबिलिटी is the potential availability of rain. Erodibility means the potential availability of rain to cause the erosion. Erodibility को अच्छे से समझिए. It is defined as the potential availability of rain to cause the erosion. Okay, if the rain ज़्यादा पावर है ज्यादा पावर है मींस इंटेंस रेनफॉल हो रहा है साइज बड़े हैं ना पार्टिकल साइज बड़ा जा रहा है ठीक है इंटरनल वेलोसिटी उसकी बड़ी हो जाते हैं तो दैट इज physical characteristics of the rainfall. That is the physical characteristics of the rainfall and which is ability to cause the erosion. Which is ability to cause the erosion. So erosivity is the ability of the rain to cause the erosion. It's depend upon the physical characteristics of the rainfall. What physical characteristics of the rainfall? The physical characteristics of the rainfall are raindrop size, raindrop distribution. Okay, suppose that there is an area where in some area there is a slightly rainfall and there is some area there is no rainfall. So distribution of rainfall is also one parameters. So the rainfall distribution of the size, kinetic energy and terminal velocity. You must be know about how these
parameters affect the soil erosion, and affect the soil erosion. So these all are the responsible for the erosivity. ठीक है, तो आपको लगता है कि erosivity समझ में आ गया हो गया. Again, erosivity is defined as the potential ability of rain, and to cause the erosion. It depends upon the physical characteristics of the rainfall, which includes drop size, distribution, drop distribution, kinetic energy, and velocity. The rainfall erosivity is the rainfall energy to detach. Rainfall erosivity is the rainfall energy to detach the soil particles, because energy is required to break the soil and aggregate to the finers. If the particle will be get finer, and how the particle will be get finer, and because the rainfall has the more energy and to detach the particles, and so it is the ability of the rainfall. It is the ability of the rainfall. It is the ability of the agent and external agent. So erosivity, that is. And another term is that is the erodibility. है ना, erodibility, है ना, erode होने की कैपेसिटी. तो क्या चीज इरोड होगा? इरोड जो होगा वो सॉइल पार्टिकल्स का इरोड होगा, है ना. It is the susceptible of soil to get the erosion, and the erodibility is the function of the physical characteristics of the soil and land management practices. Erodibility, what is erodibility? It is the function of physical characteristics of the soil and soil management practices. समझ में आ रही है आप लोगों को? आप लोग समझ रहे हैं ये दो टर्म? Erosivity हुआ है, it depends upon the physical characteristics of the rainfall, and erodibility is the physical characteristics of the soil and the land practices management. And because these are the factor which is the responsible for the soil erosion as well as the soil loss. Okay, that's why we are focusing this. ठीक है, आवाज आ रही है ना? हेलो, एक्सक्यूज मी सर. हाँ, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना है दो टर्म को. एक्सक्यूज मी सर. हाँ, बोला जाए. सर टोपोग्राफी जो है वो क्या चीज को कंट्रीब्यूट करेगा, इरोडिबिलिटी की इरोजिविटी? Erodibility है ना, it is the physical characteristics of the soil. The topography come into the physical characteristics of the soil. ठीक है, ओके सर. टोपोग्राफी है ना, फिजिकल. आपको आप देखे होंगे कि जब भी हम लोग फैक्टर रखते हैं तो सॉइल इरोजन में आता है, तो एक तो आता है ना, एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स आता है, दूसरा फिजियोग्राफी फैक्टर्स भी आता है ना. तो दीज ऑल आर द है ना. तो जो आपका रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आ जाएगा, ये मतलब क्लाइमेटिक पैरामीटर्स, दैट इज द इरोजिबिलिटी. वन मिनट, इनका फोन है, जरा सा एक मिनट. हाँ बोलिए. अच्छा, पिछली बार तो माइक्रो ऑब्जर्वर में था. हाँ, अभी तो अच्छा अच्छा अच्छा. आप ऑफिस भिजवा दीजिए ना, आज तो वर्किंग डे है. दो फेज तो हो गया. हमारे यहाँ से और कोई जा रहा है क्या पूसा से? कौन कौन है?
अच्छा, ठीक ठीक, ओके। हेलो। Yes, sir. ओके ओके ओके। तो आप जो है वो इरोजिबिलिटी एंड इरोडिबिलिटी समझ में आ गया है। इरोडिबिलिटी जो है वह जो है मोर ससेप्टेबल टू द सॉइल गेट इरोजन, है ना। तो इरोडिबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल एंड द लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, है ना। इसीलिए हम लोग ने क्या करता है कि सॉइल को इरोजन को कंट्रोल करने के लिए वी कांट कंट्रोल द रेनफॉल, है ना। हम लोग इरोजिबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम लोग इरोडिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं बाय पुटिंग सम वेजिटेटिव कवर, क्रॉप प्रैक्टिसेस, है ना। तो लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, है ना। तो लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के आधार पे जो है हम लोग क्या करते हैं, इरोडिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। सो द इरोडिबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल एंड लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ओके, इरोडिबिलिटी हो गया। There is a one relationship given by the scientist, the mechanical composition of the soil, है ना। मैकेनिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल सच द, है ना। जैसे कि आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि कौन सा सॉइल जो है वो मोर सस्टेनेबल होगा इरोडिबिलिटी के लिए, है ना। तो उसी हिसाब से मैकेनिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल दिया गया है कि उसमें सच उसमें सैंड है, सिल्ट है एंड क्ले है। तो इरोडिबिलिटी इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो वह होता है परसेंटेज ऑफ सैंड प्लस परसेंटेज ऑफ सिल्ट बाय परसेंटेज ऑफ क्ले, है ना। इरोडिबिलिटी इक्वल टू होता है परसेंटेज ऑफ सैंड प्लस परसेंटेज ऑफ सिल्ट। मींस यह इंडिकेट कर रहा है कि जिस सॉइल में सैंड की मात्रा ज्यादा होगा और लेकिन सिल्ट की मात्रा ज्यादा होगा, दैट इज द मोर ससेप्टेबल, है ना। और डिवाइडेड बाय द क्ले, डिवाइडेड बाय क्ले, है ना। तो क्ले जो है वह है कि क्ले की अगर संख्या ज्यादा अगर हो जाती है ना, तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो इरोजिबिलिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। सो लाइक दैट देयर इज अ कॉम्बिनेशन, देयर इज वन रिलेशनशिप of the erodibility equal to percentage of sand plus percentage of silt divided by the percentage of the clay particles, है ना। सैंड, सिल्ट, क्ले का आप लोगों को पता होगा, है ना, क्या होता है। ठीक है, ठीक। इसके बाद हमने जो है आपको एक व्हाट्सएप भी अभी दिया है ना। उसमें क्या है कि देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, है ना। सॉइल इरोजन का आपको पता चल गया, डिफरेंट मॉडल्स हैं जो व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द, नॉट द रिस्पांसिबल, देयर टेक्निक्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सॉइल लॉस, है ना। सॉइल लॉस में क्या है कि प्रेजेंट में जो है अभी हम लोग जो है यो यूजली यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, है ना, एंड मॉडिफाइड सॉइल लॉस इक्वेशन, है ना, मुशले, है ना। ये दो हम लोग को जो है वो स्टडी करना है। उसमें यूशले, है ना, इसके बाद में रिवाइज्ड सॉइल लॉस इक्वेशन है ना, ये भी है, ठीक है ना। इसके बाद वीप है ना। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स वी डेवलप फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द सॉइल लॉस, बट द more common methods are the soil loss equation, that is the usually, and it was developed by the Wismar Smith in 1965. The equation are, है ना, इक्वेशन देखिए आप लोग को ये स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना, RKLSCP, है ना, RKLSCP, these are the factor which is responsible for the average soil loss, है ना। एवरेज सॉइल लॉस ए इक्वल टू हो गया RKLSCP। आप देख सकते हैं कि ए जो है वह क्या है, एनुअल सॉइल लॉस है, वो टन पर हेक्टर पर ईयर, है ना, टन पर हेक्टर पर ईयर है, ठीक है। उसमें आपको जो है रेनफॉल इरोजिबिलिटी फैक्टर है आर, आर क्या है, रेनफॉल इरोजिबिलिटी फैक्टर,
है ना, रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर हम आपको समझाए, इसीलिए हमको पहले समझाए कि व्हाट इज द इरोजिविटी फैक्टर्स, है ना। इरोजिविटी समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। वह आर है, दैट इज द इरोजिविटी फैक्टर्स, एंड के इसमें जो है वो इरोडिबिलिटी फैक्टर है, सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर्स, है ना, सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर्स। इरोजिविटी समझ में आ गया है आप लोग को? यस सर। हाँ, इसके बाद तीसरा जो आपका जो है वो है एल है ना। एल जो है वो स्लोप लेंथ फैक्टर है, मींस स्लोप अगर ज्यादा होता है ना, आप देख रहे हैं कि स्लोप अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी ज्यादा अचीव कर लेता है आगे बढ़ते बढ़ते, है ना। सो और एस जो है वो सॉइल स्टिफनेस फैक्टर है। तो हम लोग ने क्या करता है, क्या होता है इसमें कि एलएस फैक्टर को दोनों एक साथ कैलकुलेट करते हैं, सॉइल लेंथ स्लोप लेंथ एंड स्टिफनेस स्लोप फैक्टर, है ना, दोनों की मिलाकर के एलएस फैक्टर को बोलते हैं, एलएस फैक्टर बोलते हैं एलएस को, है ना। इंडिविजुअल एल जो है वो स्लोप लेंथ फैक्टर हो गया और एस जो है वह स्लोप स्टिफनेस फैक्टर हो गया। Both are known as the length stiffness of soil factor, LS factor. LS factor direct relation of the soil losses, आप देखते हैं डायरेक्ट रिलेशन में है, it is approximate equal to the square root of the slope length, square root of the slope length, है ना। एलएस स्टीफनेस फैक्टर जो है आप लोग को हमने एक पीडीएफ शेयर किया है, आप उसमें देखिएगा, उसमें कंबाइंड जो है इफेक्ट उसमें दिखाया गया है, स्लोप लेंथ फैक्टर को कंबाइंड किया गया है और उसको टोपोग्राफिक फैक्टर बोला जाता है, ठीक है ना। एलएस फैक्टर इज आल्सो नोन एज द टोपोग्राफिक फैक्टर्स। एलएस फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए, एलएस फैक्टर को हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं, एल अंडर रूट एल बाय 100, आपको जो हम पीडीएफ शेयर किए हैं आप देखिएगा उसमें है ना। एलएस फैक्टर इक्वल टू होता है अंडर रूट एल बाय 100, ठीक है, इनटू 0.76 प्लस 0.53 एस एंड 0.076 एस टू द पावर 2 या एक्स एस स्क्वायर बोल सकते हैं, जो कि एल जो है स्लोप लेंथ वो फीट में होना चाहिए, ठीक है ना। स्लोप लेंथ क्या होगा, फीट में होगा, और परसेंटेज स्लोप लेंथ है वो क्या है, एस जो है वो परसेंटेज स्लोप लेंथ है, हाउ मच परसेंटेज, ठीक है। तो एलएस फैक्टर हो गया। और सी जो है वह क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, सी क्या है, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, है ना। इट में बी डिफाइन एज, इसको डिफाइन करते हैं एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द सॉइल लॉसेस फ्रॉम द क्रॉप under the specific crop, है ना, under the specific crop and the soil loss from the continuous fallow land, मीन्स इसका इस तरह से किया जाता है, फैक्टर को डिफाइन किया जाता है। सपोज दैट कोई फैलो लैंड हो गया और उसमें अगर हम मान लिया जाए कि लेग्यूम्स क्रॉप कोई लगा दिए, है ना, कोई भी क्रॉप को हम प्लांट कर दिए, है ना, तब हम देखते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तब हम कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि हाउ मच इरोजन कैन बी कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वह फैक्टर प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, अगर ज्यादा डेंस प्रैक्टिसेस होगा क्रॉपिंग का तो क्या हो जाएगा, एलएस फैक्टर ज्यादा होगा, है ना। तो ये है एलएस फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फेलो लैंड है, फेलो लैंड के प्रोवाइड द स्लोप सॉइल टाइप स्लोप एंड द रेनफॉल कंडीशन इज आल्सो इंडिकेटेड, तो उस फील्ड में इस हिसाब से जो है डिफाइन किया जाता है। तो क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिफाइन एज, है ना, एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द सॉइल लॉस फ्रॉम द क्रॉप अंडर द स्पेसिफिक क्रॉप, है ना, soil loss from the crop under the specific crop to the soil loss of the continuous fallow land, है ना। इसको कैसे किया जाता है कि मान लिया जाए कोई भी लैंड है जो बहुत दिन से फैलो है, ठीक है ना, उस पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि कितना सॉइल लॉस हो रहा है। अब उसमें क्या किया है कि डिफरेंट क्रॉप प्रैक्टिसेस क्या करेंगे, है ना। स्वाभाविक है कि जब हम लोग क्रॉप प्रैक्टिसेस करेंगे, है ना, उसमें हम हो सकता है कि स्ट्रीप क्रॉपिंग किए,
है ना, कंट्रोल फार्मिंग के उसके करने के बाद में देखते हैं कितना सॉइल लॉस हुआ, तो आपको क्या होगा कि फैलो से कम ही सॉइल लॉस होगा। तो दैट इज द रेशियो, है ना, वो क्या है, रेशियो है दैट प्रोवाइड द सॉइल टाइप्स, ये सबको उसमें कंसिडर किया जाता है। दैट कम दैट है ना क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर दैट कैन बी कैलकुलेटेड, उस तरह से हम लोग जो है क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अदर जो है वह जो है पी है, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में क्या करते हैं, इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ द सॉइल लॉस ऑफ द गिवन कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस टू द सॉइल लॉस ऑब्टेन फ्रॉम द अप एंड द डाउन ऑफ द स्लोप। ठीक है ना, कोई भी अगर लैंड है उसमें हम लोग कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस डालते हैं, तब देखते हैं कि अप में क्या सॉइल लॉस हो रहा है और डाउन स्ट्रीम में क्या सॉइल लॉस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कैलकुलेट द कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फैक्टर पी, है ना, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फैक्टर पी, है ना। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द पी फैक्टर, है ना। इफ वी हैव नो अबाउट द ऑल फैक्टर RK, LS, CP, then we are able to determine, है ना, determine the universal soil loss, है ना। तो इस हिसाब से जो है आपको क्या करना है, सॉइल लॉस जो है ना एस्टिमेशन करते हैं। दीज आर द, तो ये सारा टर्म आप लोगों को समझ आ गया, है ना। उसमें से क्या है कि जो आपका LSCP जो है ना, इसका दीज आर द फैक्टर। LSCP क्या है, ये फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स का क्या होता है ना कि कोई डायमेंशन नहीं होता है, दीज आर द डायमेंशन लेस, है ना। क्या है, डायमेंशन लेस पैरामीटर्स हैं। तो इसमें पैरामीटर्स क्या बच गया, जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि आपका जो एवरेज सॉइल लॉस का जो ये यूनिट है दैट इज टन पर हेक्टर पर ईयर है, ठीक है ना। तो दैट कम फ्रॉम द रेनफॉल, मतलब इरोजिबिलिटी इंडेक्स एंड द सॉइल इरोजिबिलिटी इंडेक्स, है ना। दीज टू इंडेक्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिट, है ना, यूनिट ऑफ द सॉइल लॉसेस, ठीक है। इसमें जो भी पैरामीटर्स हैं, लास्ट 4 पैरामीटर्स आर द फैक्टर, सो इट इज द डायमेंशन लेस, ठीक है। और जो आपको समझ में आ गया होगा कि कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोग ने पढ़ा होगा, टेरेस फार्मिंग पढ़ा होगा, है ना, स्ट्रिप क्रॉपिंग पढ़ा होगा, कंटूर फार्मिंग पढ़ा होगा, है ना। तो दीज आर द प्रैक्टिसेस व्हिच इज फॉर द कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फैक्टर, है ना। ये कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फैक्टर्स हैं उसको करने के लिए, ठीक है, ठीक ना। अब देखिए कि क्या है, ये सीपी फैक्टर ऑलरेडी आप लोगों को सब बता दिए। तो यूजुअली स्पेसिफिकली डेवलप फॉर द फॉलोइंग, यूजुअली जो है ये यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, ये जो डेवलप किया गया है किस लिए, क्या है, प्रेडिक्टिंग द एवरेज एनुअल लॉस फॉर अ गिवन फील्ड, है ना, स्लोप अंडर द स्पेसिफाइड लैंड यूज्ड एंड द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। It provides the guidelines for the selection of the conservation measures against the soil loss or the soil losses for the specific site, soil erosion or the soil losses, ठीक है। And evaluating the factor of the fellow soil measure followed then the soil conservation measures about the reduction level of the soil losses, है ना। तो क्या होता है, जितनी भी what are the factors, these all are the factors for responsible for the conserving or the controlling. So by putting the different type of the practices in the field, है ना, these are the able how much soil erosion or soil loss can be controlled, ठीक है ना। तो आप देखे होंगे कि इसके हिसाब से, है ना, you are able to recommend the different type of the conservation practices or the agronomical measures or some P factors, है ना, मैनेजमेंट ऑफ द P factors, है ना। अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो then only you are able to give the suggestion, ठीक है।
इसके बाद डिसाइडिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द क्रॉप सिस्टम, है ना, विद द अल्टरनेट कंजर्वेशन मेजर्स सच एज द कंटूर हो गया, ट्रेसेस हो गया, स्ट्रिक क्रॉपिंग हो गया, ठीक है ना। टोटली इट इज ऑल आर द डिपेंड अपॉन द टोपोग्राफी एज वेल एज द स्लोप, ठीक है ना, उसके हिसाब से करता है। एंड डिटरमाइन द एक्सटेंट, है ना, एक्सटेंट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्लोप सुटेबल फॉर ए गिवन क्रॉपिंग सिस्टम एंड द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। प्रेडिक्टिंग द सॉइल लॉस फ्रॉम द कंजर्वेशन साइट्स, है ना, साइट्स, है ना, और डिफरेंट टाइप के जो साइट्स पे जो है हम लोग किस तरह से सॉइल लॉस को कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए इसकी जो है वह डेवलप किया जाता है ना। यूजली कैन बी डेवलप फॉर द फॉलोइंग, इसलिए यूजली को जो है डेवलप किया गया है, ठीक है। तो यूजली क्लियर हो गया आप लोगों को यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। हेलो, आप लोग यूजली के बारे में समझ में आया? यस सर। हाँ, तो आप में मॉडिफाइड भी है ना, मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, है ना। मॉडिफाइड में क्या किया गया है कि सिंपल द यूजली कैन बी मॉडिफाइड, है ना, बाय द विलियम इन 1975, है ना। मुस्ले के जगह पर सिर्फ जो है आर के जगह पर जो है वो देखिए Q इंटू QP टू दी पावर 0.56 को पुट किया गया है, ठीक है ना। उसको वो किस लिए पुट किया गया है ना, वो आपको जो है वो दिखाई देगा, इसलिए कि है ना वहां पर टन था, है ना, वह जो था कि एक पर्टिकुलर रेन स्ट्रॉम, है ना, अगर कंटिन्यूअस रेन फॉल हो गया पर ईयर था वहां पर, आप देखे होंगे कि इसके यूनिट, है ना, इसका यूनिट क्या है आप देखते हैं पर ईयर है ना। तो पर ईयर में कितना हुआ एक साथ किया गया जाता है ये यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में। और मुस्ले में क्या होता है कि जो मॉडिफाइड किया गया है वो स्ट्रॉम वाइज, सपोज दैट 1 आवर 2 आवर के लिए अगर रेनफॉल हुआ तो वी आर एबल टू calculate the how much soil erosion, soil losses can be take place in particular event. So in modified universal soil loss equation we are able to determine the event wise, है ना, सेडिमेंट यील्ड कर सकते हैं और सॉइल इरोजन इट इज द इवेंट वाइज, है ना। क्यू इज द रेनफॉल वॉल्यूम है आपका, देखिए फीट में है, एकड़ पर फीट में है। इसके बाद क्यू पिक जो है वो पिक रन ऑफ रेट है, पिक रन ऑफ रेट एंड ऑल थिंग्स आर द सेम, है ना। के LSCP आर द सेम एज द फैक्टर्स में, है ना। तो ये मॉडिफाइड जो है ये वो मॉडिफाइड हो गया, ठीक ना। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूजली एंड मुस्ले? आप लोगों को यूजली मुस्ले समझ में आया? यस सर। हाँ, तो आप लोगों को कुछ ये जानना है, ठीक है। आप देखिएगा सेकंड में जो है आपका रिवाइज यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन है, ठीक है ना। उसको रिवाइज किया गया है कब आप देखिए, है ना, इस सीरीज में है, मॉडिफाई हुआ पहले, इसके बाद उसको मॉडिफाई रिवाइज किया, है ना। 1997 में उसको मॉडिफाइड किया, दैट इज कॉल्ड द रिवाइज्ड, है ना, रिवाइज्ड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। इट्स कंप्यूट द एनुअल सॉइल लॉस पर यूनिट एरिया, है ना। उसमें सेम है, उसी तरह का, ज्यादा कुछ ये अंतर नहीं है ना। आर के LSCP भी वो टर्म को दिया गया है, सेम है, सिर्फ यही है कि वो जो है वह बड़े फील्ड के लिए था, है ना, और ये स्मॉल फील्ड के लिए है, बस दैट इज अ डिफरेंट ओनली। क्या डिफरेंस है? रिवाइज जो है वह छोटे फील्ड के लिए है और ये जो यूजली जो है वो बड़े फील्ड के लिए है, ठीक है। इट इज नॉट रिटन हियर बट दैट इज द डिफरेंस ओनली, ठीक ना, ठीक। हाँ, बस इतना ही है आपका, ठीक है। इसके बाद एडवांटेज है, एडवांटेज ये आपको नहीं दिए हैं, हम दे देंगे, ठीक है ना।
ये सब है। यस सर। तो आप लोगों को जो है अभी एक असाइनमेंट रहेगा, है ना। असाइनमेंट ये रहेगा, डिस्क्राइब अबाउट और डिफाइन अबाउट द इरोजिबिलिटी एंड इरोडिबिलिटी, इरोजिबिलिटी एंड इरोडिबिलिटी। डिस्क्राइब अबाउट इरोजिबिलिटी एंड इरोडिबिलिटी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर अगर विंड वेलोसिटी कहीं ना कहीं रेनफॉल की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है सर, तो उस कंडीशन में विंडफॉल वेलोसिटी को फैक्टर अफेक्टिंग रेनफॉल इरोजिबिलिटी में डालेंगे क्या? हाँ, रेनफॉल ही जाएगा वो, इरोजिबिलिटी में जाएगा वो, विंड है ना। वेलोसिटी सर। क्लाइमेटिक पैरामीटर जो भी रहेगा वो आपका चला जाएगा इरोजिबिलिटी में, ठीक ना। ओके। और सर अगर डायरेक्शन ऑफ स्लोप की बात करें सर, तो डायरेक्शन ऑफ स्लोप कहीं ना कहीं सर रेनफॉल की इंटेंसिटी को डिपेंड करता होगा सर, क्योंकि अगर रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वह कुछ नहीं है। विंड वेलोसिटी जो है अगर स्लोप के अगेंस्ट में रहता है तब क्या होता है कि इरोजन की संभावना थोड़ा सा कम होता है। बट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब भी सॉइल सैचुरेट हो जाएगा तो वह रेनफॉल जो है वो आपका इरोजन हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज दैट आपका, आप देखिए, आप विंड डायरेक्शन के अलोंग चलिए और विंड डायरेक्शन के अगेंस्ट चलिए, है ना। तो आप देखे होंगे कि आपको चलने में, अलोंग द विंड डायरेक्शन चलने में क्या होता है कि आप फास्ट मूव करिएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि इरोजन बढ़ जाएगा। अगर स्लोप के अलोंग होगा विंड डायरेक्शन तो क्या होगा, स्लोप बढ़ जाता है, उसका इरोजन बढ़ जाता है ना, आपका सॉइल लॉस भी बढ़ जाएगा। अगर अगेंस्ट होगा तो कम होगा, ठीक है। ये है, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट है, डिफाइन या डिस्क्राइब अबाउट द इरोजिबिलिटी एंड इरोडिबिलिटी, ठीक है। इसको डिफाइन करना है आपको, असाइनमेंट बना के सबमिट करना है, ठीक ना। सर हैंड रिटन या नहीं, हैंड रिटन चलेगा, हैंड रिटन, कंप्यूटर में हैंड रिटन, ओके सर। है ना। इरोजिबिलिटी एंड इरोडिबिलिटी, ठीक है। सर कितने पेज का होना चाहिए लगभग, और लास्ट डेट क्या है, और सर A4 और ठीक है, और ये जो हम उसी से रिलेटेड आप सॉइल लॉस एस्टिमेशन मॉडल, उसके साथ में पहले आप दोनों को डिफाइन करिएगा, इसके बाद आज जो हमने डिटेल में पढ़ाया उसको, ठीक है ना। उसमें डिफरेंट फैक्टर आपको बताए हैं, आर फैक्टर, के फैक्टर, LSCP, ये सब आप जो है अपने हैंड राइटिंग में बना करके सबमिट करना है, ठीक। सर लास्ट डेट क्या है? 2 से 3 पेज में बनाना है, 3 पेज से ज्यादा नहीं, 3 पेज से ज्यादा नहीं, ठीक ना। सर लास्ट डेट क्या है? क्या क्या बोल रहे हैं? सबमिट कब तक करना है? सबमिट नेक्स्ट क्लास में सबमिट कर देना है आपको, ज्यादा समय नहीं लेना है इसमें, नेक्स्ट क्लास में सबमिट करना है। तो असाइनमेंट समझ में आ गया। ये असाइनमेंट डिस्क्राइब अबाउट द इरोजिबिलिटी एंड इरोडिबिलिटी एंड आल्सो द सॉइल लॉस एस्टिमेशन मॉडल, ठीक है ना। सॉइल लॉस एस्टिमेशन मॉडल, ठीक है। आप जो है हम लोग, आप अटेंडेंस दे दीजिए हमको।